Hello learners, I once again welcome you all to our YouTube channel. We are learning synonyms and antonyms asked in previous year question papers of various examinations such as SSC, Banking, Railways, NDA, CDS, etc. If you have not watched our previous videos, you can watch those videos by simply clicking on the links available in the description box of this video only. So let's not waste our time and begin our today's session. Friends, the first question which we have for today's session is select the option that is opposite in meaning to the given word. This question is from CDS part 1 which was conducted this year only 2021. The word is spontaneous. It's an adjective. Let's look at our options first. Option number 1 is prepared. Option number 2 is altered. Option number 3 is deliberate. Option number 4 is well executed. Let's look at the meaning of spontaneous. It means not apparently contrived, or you can also say manipulated. If something is spontaneous, it means there is less external force or less external interference. Let's look at our options. Option number 1 is prepared. It means subjected to a spatial process. Spatial process. Let's move on to next option, which is altered. Altered means made different different in some way. Altered का मतलब क्या होता है? बदलना होता है, चेंज करना होता है. तो altered means made different in some way, किसी भी तरीके से अलग बनना. Let's move on to next option, which is deliberate. It means to about think about or discuss carefully carefully. If you are deliberating about something, it means you are discussing something very carefully in an elaborated manner. So let's move on to last option, which is well executed. It means carried out fully. Carried out fully. If something is well executed, it means it has been carried out fully in the true spirit. Altered is opposite in meaning to the given word spontaneous. So we would mark option number 2 as the correct one. Let's move on to next question. The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. This question is also from CDS part 1 2021. The word is asserting. Let's look at our options. Option number 1 is declaring. Option number 2 is supporting. Option number 3 is denying. And option number 4 is propagating. Let's look at the meaning of asserting, or you can say assert. If we look at the meaning of assert, it means to declare or state, something, 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 often forcefully or aggressively. तो असर्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आप डिक्लेयर करना या कहना विथ फर्म रेजोल्यूशन, विथ फर्म डिटर्मिनेशन, उसको हम क्या कहेंगे? असर्ट करना कहेंगे. असर्ट से ही असर्टिंग बना है. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन. ऑप्शन नंबर 1 इज declaring. It means to let others know about about something. So declare means to let others know about something. Let's look at the next option, which is supporting. It means to providing support, you can say. सहायता देना. To back someone or something up. Providing support. Let's move on to next option, which is denying. It means to refuse to admit. डिनाई करने का मतलब टू रिफ्यूज टू एडमिट, मतलब मना कर देना, मानने से मना करना, सहमति देने से इनकार करना.
Let's move on to last option, which is propagating. It means to cause to spread out. If you are propagating something, especially your ideas, your beliefs, it means you are making others aware of your beliefs and ideas. ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है, डिनाइंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. डिनाइंग इज इन अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ asserting. So we would mark option number 3 as the correct one. Let's move on to next question. The question is, select the option that is opposite in meaning to the given word. This question is also from CDS part 1 2021. The word is exonerated. exonerated exonerate से मिलकर बना है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है. यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है इसको. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस. ऑनर्ड, pardoned, convicted, felicitated. These are the options available. Let's look at the meaning of exonerate. It means to relieve of responsibility, or you can also say obligation. तो किसी ड्यूटी से, किसी ऑब्लिगेशन से मुक्त कर देना, रिलीव कर देना, एक्सोनरेट करना कहलाता है, और एक्सोनरेट से ही एक्सोनरेटेड बना है हमारा यहाँ पर. लेट्स मूव ऑन टू आवर ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 इज ऑनर्ड. इट मीन्स ट्रीटेड विथ admire, treated with admire and respect. किसी को सम्मान से ट्रीट करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको ट्रीट करना, ऑनर करना कहलाता है. तो ऑनर से ही ऑनर्ड बना है. If someone is honored, it means he or she has been treated with admire and respect. Let's move on to next option, which is pardoned. यहाँ pardon वर्ब है और pardon से pardon बना है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है. तो pardon का मतलब क्या होता है? pardon का आपका मतलब होता है excused और forgive for a fault. forgive for to forgive for a fault और क्राइम. किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी फॉल्ट के लिए, किसी भी गलती के लिए क्या कर देना? माफ कर देना. टू फॉरगिव फॉर अ फॉल्ट और क्राइम, तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्डन करना वो कहलाता है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज कन्विक्टेड. कन्विक्ट से बना है. कन्विक्ट एक वर्ब है. कन्विक्ट का मतलब होता है हमारा टू फाइंड टू बी गिल्टी. गिल्टी का मतलब दोषी. तो कन्विक्ट करने का मतलब क्या होता है? टू फाइंड टू बी गिल्टी. किसी को दोषी सिद्ध करना, दोषी पाना, किसी को अपराधी सिद्ध करना या अपराधी पाना. लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन, विच इज फेलिसिटेटेड. फेलिसिटेट वर्ब से बना है. इसका मतलब होता है टू ऑफर congratulations, or you can also say, or to make happy. खुश करना या किसी को ऑफर करना क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, शुभकामनाएं. तो उसको हम क्या कहेंगे? फेलिसिटेट करना कहेंगे. एक्सोनरेटेड का हमसे पूछा गया है एंटोनिम. तो इसका मतलब होता है टू रिलीव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन. बट यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अप्रोप्रिएट एंटोनिम है एक्सोनरेटेड का, कन्विक्टेड. सो ऑप्शन नंबर 3 would be the correct one. We would mark option number 3 as the correct one. Let's move on to next question. The question is, select the option that is opposite in meaning to the given word. Again, we have been asked antonym. This question is also from the same examination, CDS part 1 2021. This year conducted only. The word is persuasion. It's a noun. Let's look at our options.
Option number 1 is dislike. Option number 2 is discouraging. Option number 3 is convincing. And option number 4 is deter. Let's look at the meaning of persuasion. It means the act of persuading, or you can also say the urging, act of urging. Let's move on to options. Option number 1 is dislike. It means feeling of aversion, a feeling of aversion or dislike का मतलब क्या होता है? नापसंद. Option number 2 is discouraging. It means deprived of courage, deprived of courage, or you can also say disheartening, heartening. अगर कोई चीज डिस्करेजिंग है तो उसमें करेज की कमी है. करेज मतलब साहस होता है. Let's move on to next option, which is convincing. It means satisfying, or you can also say or assuring, satisfying or assuring by argument or proof. तो कन्विंस करने का मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज के लिए एश्योर करना, सेटिस्फाई करना आर्गुमेंट या प्रूफ के द्वारा. तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्विंस करना. कन्विंस करने का मतलब मना लेना, है ना, किसी चीज के लिए. तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं अपना, डिटर. डिटर का मतलब होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम एन एक्टिविटी. किसी भी एक्टिविटी को, एक्शन को होने से प्रिवेंट करना क्या कहलाता है? डिटर करना कहलाता है. यहाँ पर हमसे परसुएशन का एंटोनिम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आप देखो, डिस्करेजिंग. जो डिस्करेजिंग है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. सो वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट वन. Let's move on to next question. The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. Again antonym. This question is from CDS part 1 2021. The word is distinctive. It's an adjective. Let's look at our options. Option number 1 is unique. Option number 2 is common. Option number 3 is special. Option number 4 is unfamiliar. Let's look at the meaning of distinctive. It means having uncommon and appealing quality तो डिस्टिंक्टिव एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है कि हैविंग अनकॉमन एंड अपीलिंग क्वालिटी. अनकॉमन क्वालिटी जो कि विशिष्ट हो, किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही वस्तु में पाया जाता हो, वो क्वालिटी, अपीलिंग क्वालिटी, है ना, वो कॉमन ना हो, सामान्य रूप से लोगों में ना प्राप्त हो, लोगों में वस्तुओं में ना प्राप्त हो, अनकॉमन सी क्वालिटी हो, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज कहते हैं. उसको हम डिस्टिंक्टिव कहते हैं, जो कि अनकॉमन सी होती है. लेट्स मूव ऑन टू आवर ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 इज यूनिक. इट मीन्स being the only one, only one. It can either be an object or a person, or you can also say an animal or anything or anyone. So unique means being the only one, केवल एक होना. तो यूनिक का मतलब सबसे अलग, सबसे न्यारा, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो हम उसको यूनिक कहेंगे. Let's move on to next option, which is common. It means shared by two or more people. तो people, or you can also say objects. तो अगर कोई क्वालिटी या कुछ भी चीज कॉमन है तो इसका मतलब कि
वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में वस्तुओं में पाई जाती है, वो सामान्य रूप से। तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन कहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज स्पेशल। इट मीन्स डिस्टिंग्विश्ड, distinguished distinguished by some unusual quality, by some unusual quality quality। तो किसी अनयूजुअल क्वालिटी, जो यूजुअल ना हो, कोई अनयूजुअल क्वालिटी, अनकॉमन सी क्वालिटी के द्वारा डिस्टिंग्विश्ड मतलब जो अलग हो, है ना, एक अलग से उसकी विशेषता हो, किसी अनयूजुअल क्वालिटी हो उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेशल कहते हैं। Let's move on to last option, which is unfamiliar. It means not well known. Well known. If something is unfamiliar to the masses or to you, it means it is not known, well known. You are not aware of it. So, if you are not aware of something, it means you are unfamiliar with the thing we are referring to. तो इसका मतलब होता है अनफेमिलियर का नॉट वेल नोन। डिस्टिंक्टिव, हैविंग अनकॉमन एंड अपीलिंग क्वालिटी। एंटोनिम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 कॉमन वुड बी द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बी वेरी केयरफुल। Here they are asking to select the option that is nearest in meaning to the given word. They are asking synonym of the given word. This question is also from CDS Part 1, 2021. The word is crux, it's a noun. Let's look at our options: core, part, idea, tip. These are the options available. Let's look at the meaning of crux first. It means a main or central feature of something, feature of something, something। तो क्रक्स किसको हम कहते हैं? मेन और सेंट्रल फीचर ऑफ समथिंग। कोई आइडिया हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? कि कोई भी बात है तो हम कहते नहीं कि सीधा क्रक्स पे आओ, कहानियां मत सुनाओ, सीधा क्रक्स पे आओ। तो सीधा मेन और सेंट्रल फीचर पे आओ, जो बात तुम्हें कहनी है, मेन बात क्या है, सेंट्रल उसका आइडिया क्या है, उसका मुख्य बिंदु क्या है, उस पर आओ आप। तो क्रक्स का मतलब वही होता है, निचोड़ होता है, मेन, और या यू कैन ऑल्सो से सेंट्रल फीचर होता है। Let's move on to our options. Option number 1 is core. It means a central and often foundation, foundational part of something, part of something, something। तो कोर का मतलब क्या होता है? केंद्र होता है। तो कोर का मतलब होता है अ सेंट्रल एंड ऑफन यू कैन से फाउंडेशनल पार्ट ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज का जो सेंटर जो होता है, जो केंद्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। सेंट्रल पॉइंट को हम कोर कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज पार्ट। इट मीन्स अ पोर्शन, और एलिमेंट ऑफ समथिंग। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, यू कैन से, हिंदी में हिस्सा कहते हैं इसको। तो पार्ट का मतलब अ पोर्शन और एलिमेंट ऑफ समथिंग। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज आइडिया। इट मीन्स अ प्लान फॉर एक्शन, प्लान फॉर एक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडिया कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट ऑप्शन विच इज टिप। इट मीन्स यूजुअली अपॉइंटेड एंड ऑफ समथिंग, पॉइंटेड एंड ऑफ समथिंग, समथिंग। तो किनारे का जो बिंदु होता है उसको हम टिप कहते हैं, है ना। तो किसी जो पॉइंटेड सी चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटेड एंड को टिप कहते हैं किसी भी चीज के। तो क्रक्स का हमसे पूछा क्या गया है? सिनोनिम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो आप, कोर। कोर हैज द सेम मीनिंग एज द क्रक्स हैज, so we would mark option number 1 as the correct one.
Let's move on to next question. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from the same examination CDS Part 1 2021. The word is competency. It's a noun. Let's look at our options. Capability, thinking, knowledge, ideal. These are the options. Let's look at the meaning of competency. It means possession of sufficient knowledge और skills. तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है possession of efficient और you can say sufficient knowledge और skills. तो sufficient knowledge और skill अगर किसके पास है तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंसी कहेंगे कि उसके पास कॉम्पिटेंसी है, क्षमता है. Let's move on to options. Option number 1 is capability. It means, you can say, capability means quality or state of being capable. Quality of being capable. Capable का मतलब क्या होता है? सक्षम होना. If you are capable of doing something, it means you are able to do that. So capable होने की क्वालिटी को हम क्या कहेंगे? कैपेबिलिटी कहेंगे. Let's move on to next option, which is thinking. It means action of using mind to produce a thought, you can say. तो किसी भी विचार को प्रोड्यूस करने के लिए और सोचने की जो क्रिया है, अपने दिमाग को जो यूज करने की क्रिया है, उसको हम क्या कहेंगे? थिंकिंग कहते हैं. द एक्शन और द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइंड टू प्रोड्यूस अ थॉट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज नॉलेज. इट मीन्स, यू कैन से, नॉलेज मीन्स the fact or condition of knowing. Let's look at our last option, which is ideal. It means relating to what ought to be, relating to what ought to be, what ought to be. It means we are not focusing on what is, but we are focusing on what ought to be. So it can be any situation, any idea, anything. So when we say what ought to be, we talk about ideal. तो कॉम्पिटेंसी का हमसे पूछा क्या गया है? सिनोनिम पूछा गया है. तो ऑप्शंस हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. कैपेबिलिटी करेक्ट और अप्रोप्रिएट सिनोनिम है कॉम्पिटेंसी का. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from CDS Part 1 2021. The word is haughty. It's an adjective. Let's look at our options. Tough, modest, arrogant, knowledgeable. These are the options. Let's look at the meaning of the given word. The meaning of the given word is having an attitude of superiority, having attitude of superiority and contempt for and contempt for others. तो हॉटी का मतलब क्या होता है? हम किसको हॉटी कहेंगे? जिसके पास सुपेरियोरिटी का एटीट्यूड हो और जिसके पास दूसरों के लिए कंटेम्प्ट हो, अपने को वो सुपीरियर मानता हो, दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देता हो, उसकी अवज्ञा करता हो दूसरों की, उसको हम क्या कहेंगे? उसके पास कैसा उसका बिहेवियर, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हॉटी उसको बोलेंगे. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन. ऑप्शन नंबर 1 इज टफ. It means difficult to accomplish. Difficult to accomplish. Accomplish का मतलब कंप्लीट करना, पूर्ण करना कहलाता है. तो किसी भी चीज को अगर टफ है
तो वो क्या है, डिफिकल्ट है उसको पूरा करना, है ना, उसको कैरी आउट करना, तो उसको हम टफ कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज मॉडेस्ट। इट मीन्स नाइदर 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 बोल्ड नॉर सेल्फ असर्टिव। तो जो ना ही बोल्ड होते हैं और ना ही सेल्फ असर्टिव होते हैं अपने नेचर में, उनको हम मॉडेस्ट कहते हैं, उनको नम्र कहते हैं, विनम्र कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज एरोगेंट। इट मीन्स showing an offensive attitude, showing an offensive offensive attitude and disrespect for others, disrespect for others for others। तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एरोगेंस हो, ऑफेंसिव एटीट्यूड हो, और वो दूसरे के प्रति उसके पास डिसरिस्पेक्ट हो, वो दूसरे की रिस्पेक्ट ना करता हो। दम्भी अभिमानी कहते हैं हम एरोगेंट को हिंदी में। लास्ट ऑप्शन हमारा नॉलेजेबल है। इसका मतलब होता है हैविंग नॉलेज। हमसे पूछा क्या गया है, गिवन वर्ड का सिनोनिम पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर 3 देखो आप, तो एरोगेंट का भी वही मतलब होता है जो हॉटी का मतलब होता है। तो एरोगेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट वन। Let's move on to next question. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from CDS part 1 which was conducted in 2021. The word is industrious. It's an adjective. Let's look at our options. Option number 1 is diligent. Option number 2 is knowledgeable. Option number 3 is indolent, and option number 4 is insincere. Let's look at the meaning of industrious first. The person who is industrious, the person is constantly involved, or you can say constantly and regularly active। तो इंडस्ट्रियस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मेहनती। लेट्स मूव ऑन टू आवर ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज diligent. It means characterized characterized by hard work, or you can say sincere efforts, or you can also say hard working। तो जो हार्ड वर्किंग होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिलीजेंट कहते हैं। हार्ड वर्किंग, जो कड़ी मेहनत करते हैं। Let's look at the option number 2 which is knowledgeable. It means having knowledge. Let's look at the next option which is indolent. It means inclined to sluggishness. Inclined to sluggishness. sluggishness sluggishness का मतलब क्या होता है, आलस होता है। तो जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं हम उनको स्लगिश कहते हैं। तो इंडोलेंट वो लोग होते हैं जो इंक्लाइंड होते हैं स्लगिशनेस की तरफ। तो आलसी, सीधा सीधा हम कहते हैं इनको कामचोर कहते हैं। तो जो कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, indolent। Let's look at the last option, insincere. It means not sincere, or you can say hypocritical, hypocritical, critical। hypocritical कौन होते हैं, जिनके वर्ड्स और उनके एक्शन मैच नहीं करते, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। तो वो सिंसियर नहीं होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं अपने प्रयासों के प्रति, तो हम उनको इनसिंसियर कहते हैं। तो इंडस्ट्रियस का हमसे पूछा गया है सिनोनिम। ऑप्शन नंबर 1 आप देखो, डिलीजेंट। डिलीजेंट का भी मतलब वही होता है जो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है। तो वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 1 डिलीजेंट एज द करेक्ट वन। डिलीजेंट इज appropriate synonym of the word industrious। Let's move on to next and the last question of today's session. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. Again we have been asked synonym. This question is also from the same examination CDS part 1 which was conducted in 2021. The word is indignant. It's an adjective. Let's look at our options first. Resentful, congenial, unruly,
supportive. These are the options. Let's look at the meaning of indignant. Indignant means feeling anger, or you can say feeling or showing anger. गुस्सा महसूस करना, क्रोध महसूस करना या क्रोध दिखाना बिकॉज ऑफ समथिंग अनजस्ट, बिकॉज ऑफ समथिंग अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब अन्यायपूर्ण। अगर कोई चीज अनजस्ट है और उसको लेकर के उस गुस्सा शो करना या वो महसूस करना अगर है वो अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, क्रोधी। यू कैन से हिंदी में उसको हम क्रोधी कहेंगे और इंग्लिश में हम उसको इंडिग्नेंट कहेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपना रिसेंटफुल। इसका मतलब होता है फुल ऑफ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? रिसेंटमेंट का मतलब होता है विरोध। तो जो विरोध से भरा हो उसको हम क्या कहेंगे, रिसेंटफुल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कंजीनियल। कंजीनियल का मतलब होता है agreeably suited to one's nature और इंटरेस्ट। तो कॉन्जीनियल का मतलब क्या होता है, जो कि किसी के नेचर को, किसी के इंटरेस्ट को सूट करे, उसके विरोध में ना हो, उसकी सहमति में हो। तो वैसी चीज़ों को, वैसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, वैसे रिलेशनशिप को भी हम क्या कहते हैं, कंजीनियल। लेट्स लुक एट द ऑप्शन नंबर थर्ड विच इज अनरूली। इट मीन्स नॉट डिसिप्लिन्ड और मैनेज्ड, नॉट disciplined or managed. If someone is unruly, it means he or she is not disciplined enough, she is not managed enough, well managed to cooperate with others in society in a group. तो उसको हम क्या कहेंगे, अनरूली। कई बार अनरूली का मतलब असभ्य की तरह भी लिया जाता है, तो हम वहाँ भी अनरूली का यूज करते हैं। Let's look at the last option which is supportive. Supportive का मतलब क्या होता है, promoting cause or interest of someone of or you can say someone or something। किसी के इंटरेस्ट को, किसी के कॉज को, किसी के पर्पस को प्रमोट करना, बैकअप करना, उसको सहायता करना, बैक करना, क्या कहलाता है, सपोर्टिव कहलाता है। इफ यू आर सपोर्टिंग समथिंग और समवन, इट मीन्स यू आर सपोर्टिव इन नेचर। आप दूसरे की मदद करते हो, दूसरों को सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब आपका नेचर कैसा है, सपोर्टिव है। तो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रमोटिंग कॉज और इंटरेस्ट ऑफ समवन और समथिंग को हम सपोर्टिव कहेंगे। इंडिग्नेंट का पूछा गया है हमसे सिनोनिम। इंडिग्नेंट का मतलब होता है कि शोइंग और फीलिंग एंगर। तो रिसेंटफुल का मतलब भी अगर आप देखो तो लगभग विरोध दर्शाना ही होता है, क्रोध करना ही होता है। रिसेंटमेंट का मतलब होता है विरोध दर्शाना, क्रोध दर्शाना। तो इंडिग्नेंट और रिसेंटफुल एक दूसरे के सिनोनिम है। वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट वन। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, हमारे और भी वीडियोस देखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।